ابھی آپ کے سامنے میں گناہ کے سلسلے میں تفصیلی بات کروں گا. جیسے کہ پہلے میں آپ سے بات کر چکا کہ گناہ کے لیے نون یا میم ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے. ہم نے مثال دیا تھا کہ پانی کے بغیر بھی ہم چائے بنا سکتے ہیں، دودھ کے بغیر بھی چائے بنا سکتے ہیں، شکر کے بغیر بھی چائے بنا سکتے ہیں، گڑ کے بغیر بھی چائے بنا، لیکن پتی کے بغیر، چائے پتی کے بغیر چائے نہیں بنا سکتے. اسی طرح نون میم کے بغیر گناہ نہیں ہے. یہ بات تو ایزی ہو گئی نا. اب پورے قرآن پاک میں کہاں کہاں گناہ ہے اور کہاں گناہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نون میم کی حالت کو معلوم کرنا پڑے گا کہ نون میم کتنی حالت میں ہے. تو جیسا کہ آپ بلیک بورڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ نون میم کی 3 حالت ہے. کتنی حالت ہے؟ 3 حالت ہے. نون میم کی کتنی حالت ہے؟ 3 حالت. یہ دیکھیے، میم تشدید والا، نون تشدید والا، یعنی نون میم تشدید والا. نمبر 2 حرکت والا. یہ دیکھیے، میم کے اوپر زبر پیش، نیچے زیر. زبر زیر پیش کو کیا کہتے؟ تو میم حرکت والا اور نون حرکت والا. تو میم اور نون کیا والا؟ حرکت والا. اور تیسری حالت میم اور نون جزم والا. اب بولیں گے تو مجھے بھی سمجھ میں آتی کہ اب سمجھ رہے ہیں اور آپ کو بھی بات سمجھ میں آئیں گے. اور خاموش رہیں گے نا تو پھر تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس لیے آپ بولیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ. تو نون میم پر تشدید ہے تو گناہ بولیے کریں گے. نون میم پر حرکت ہے تو گناہ نہیں کریں گے. نون میم پر تشدید ہے تو گناہ، تشدید ہے تو گناہ کریں گے. حرکت ہے تو گناہ. نون میم پر جزم ہو تو دیکھیں گے. آج انشاءاللہ میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا. بلیک بورڈ کی طرف دھیان دیجیے. میں آپ کو ایک ایک کر کے مثال دوں، اس کو ذرا سمجھے. سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گا میم کے بارے میں. تو بلیک بورڈ کی طرف دیکھیے. یہ دیکھیے، ہا کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر کیا ہے؟ کیا ہے؟ تشدید ہے. اور میں آپ کو بتایا تھا کہ نون میم پر تشدید ہے تو گناہ. ہا میم پیش ہم، ہم یہ غلط ہوگا چونکہ ہم نے گناہ نہیں کیا. میم پر تشدید ہے تو گناہ کرنا. ایک بات گئی. دوسری بات ذرا دیکھیے، میم کے اوپر زبر ہے، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما. ہا پیش ہو، میم پیش مو، ہومو، ہومو. ہا پیش ہو، میم زیر می، ہومی. کہیں گناہ ہے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا. میم پر زبر زیر پیش ہے تو گناہ نہیں. میم پر تشدید ہے تو گناہ. سو رہے کیسا بابا؟
सबको जो नहीं बोलते तो नहीं बोल, मैं नहीं बोलता, मैं क्या बोलना वो तो सुन लीजिए। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, जबर जर पेश है तो गुन्ना, जज़म हो तो देखेंगे। क्या देखेंगे? उसके बाद हरफ कौन है, तो ब्लैक बोर्ड के तरफ देखिए कि उसके बाद बा है तो गुन्ना करेंगे, या उसके बाद और एक मीम है तो गुन्ना करेंगे। इसको जरा समझिए। मीम साकिन, मीम साकिन, जज़म वाले मीम को कहते हैं, मीम साकिन जज़म वाले मीम को कहते हैं, मीम साकिन जज़म वाले मीम को कहते हैं। एक होता है मीम साकिन, एक होता है जज़म वाला मीम, एक ही बात है। वो सुबह सुबह देखेंगे हमारी गली में वो ठेला वाला, गाड़ी वाला सब्जी, टमाटर, प्याज, लहसुन और भाजी और केला वगैरह सब ठेला में लाते हैं ना। तो ठेला वाला जब आवाज़ लगाता है तो बच्चा कहता है कि अम्मा आ गया। कौन आया? कि ठेला वाला। दूसरे बच्चे ने भी कहा कि अम्मा आ गया। कौन? केला वाला। तीसरा ने कहा कि बच्चा अम्मा आ गया। कौन? टमाटर वाला। कौन सही कह रहा है? अरे बोलो ना भाई, सब सही है। वो ठेला वाला भी है, वो टमाटर वाला भी है, वो केला वाला भी है, वो सब्जी वाला भी है, क्योंकि सब कुछ बेचता है। सब नाम एक ही का है, कुछ भी बोलो सब सही। मीम साकिन बोलिए या जज़म वाला मीम, एक ही बात है। मेरी बात समझ में आई? मीम साकिन बोलिए या जज़म वाला मीम, एक ही बात है। मेरे साथ बोलेंगे, मीम साकिन जज़म वाले मीम को कहते हैं, मीम साकिन के बाद बा या और एक मीम हो, दोनों साथ नहीं, बा हो या मीम हो, बा या और एक मीम हो, गुन्नाह करेंगे, गुन्नाह करेंगे, बा में नहीं तो गुन्नाह नहीं। बस यही फार्मूला है मीम साकिन का। मीम के ऊपर अगर जज़म है वो मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद बा है, हा मीम पेशुम, गुन्ना करेंगे। क्यों? बा है। आगे देखिए, हा मीम पेशुम, गुन्ना करेंगे। क्यों? मीम है। आगे देखिए, हा मीम पेश हम, गुन्ना करेंगे। क्यों? ये नहीं बोलेंगे लाम है, वो थोड़ा मुश्किल है। सीधी बात, बा मीम नहीं, खत्म। बा मीम गुन्नाह नहीं। क्यों? बोलो ना भाई, क्यों? आगे देखिए, मीम साकिन के बाद काफ है, हा मीम पेश हम, गुन्ना। क्यों? बस आसान फार्मूला है। बामी में है तो गुन्ना, बामी में नहीं तो गुन्ना नहीं। आगे देखिए, हामीम पेशुम, गुन्ना। क्यों? बा है। आगे देखिए, हामीम पेशुम, गुन्ना। क्यों? मीम है। आगे देखिए, हामीम पेश हम, गुन्ना। क्यों? बा में नहीं। बात खत्म हो गई ना। अब इसको जरा आप एक नजर में सामने रखिए, एक नजर में सामने रखिए। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, ठीक है।
मीम के ऊपर जबर ज़ेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे। मीम के ऊपर जज़म है तो देखेंगे। बा है तो गुन्ना करेंगे, और एक मीम है तो गुन्ना करेंगे। मैंने आपको एक दिन हिसाब दिया था कि कुल हुरूफ तो 20 पर 9 है। चूंकि अलिफ पर जबर ज़ेर पेश जज़म नहीं आता, इसलिए अलिफ को हमने क्या कर दिया, तो कितना बचा? 28 में से बामीम पर बामीम आए तो गुन्ना करेंगे। 28 में से बामीम आए तो गुन्ना करेंगे। बामीम नहीं तो वो कितने हुरूफ है? वो 26 हुरूफ है, तो गुन्ना भी नहीं। आ गई बात समझ में? इसको जरा एक बार आप बोलेंगे। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, जबर ज़ेर पेश तो गुन्ना, जज़म हो तो, बा है तो गुन्ना, मीम है तो गुन्ना, बाकी 26 हुरूफ है तो गुन्ना। बात पूरी हो गई? बात पूरी हो गई। अब हम नून की बात करेंगे। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। हा के ऊपर पेश है, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना। हा नून पेश हुन, हुन गुन्ना करेंगे। आगे देखिए। हा पेश हु, नून जबर ना, हु ना। हा पेश हु, नून पेश नु, हु नु। हा पेश हु, नून ज़ेर नी, हुनी। करेंगे? नहीं करेंगे। नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, जबर ज़ेर पेश है तो गुन्ना। जज़म हो तो देखेंगे। माशाल्लाह, आपको बात समझ में आ रही। नून के ऊपर जज़म हो तो देखेंगे। ध्यान दीजिए। नून साकिन, नून साकिन, जज़म वाले नून को कहते हैं। नून साकिन जज़म वाले नून को कहते हैं। जिस तरह मीम साकिन जज़म वाले मीम को कहते हैं, उसी तरह नून साकिन जज़म वाले और लाम साकिन जज़म वाले लाम को कहते हैं। जिस पर जज़म हो वही वाला है, जिसके सर पे टोपी है वो कौन वाला? अरे जिसके सर पे टोपी है वो कौन वाला? टोपी वाला। सर पे केला है तो वो केला वाला। ऊपर जज़म है तो वो जज़म वाला। नून साकिन जज़म वाले नून को कहते हैं। नून साकिन जज़म वाले नून को कहते हैं। नून साकिन जज़म वाले नून को कहते हैं। तनवीन मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका। तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को कहते हैं। नून साकिन जज़म वाले नून को कहते हैं, और दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और मैं आपको बताया था कि नून साकिन और तनवीन एक ही है, दोनों की आवाज़ एक है। और मैं आपको बताया था कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के अंदर नून साकिन छुपा होता है। अब सवाल है कि छुपा है कि मतलब हम देख नहीं सकते? हाँ देख सकते हैं, उसकी हालत बदली हुई है। असल हम जो कहते हैं कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के अंदर नून साकिन छुपा है, हम छुपा नहीं बोलते कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में नून साकिन की हालत बदली हुई है। ये सबक बहुत अहम है, मैं आपको समझाऊं। ये नून साकिन और तनवीन क्या है? नून साकिन और तनवीन क्या है, मैं आपको समझाऊं। ये जो एक ज़बर है ना, मैं आपको समझाए तो एक ज़बर है ना, वो अ है। आपके ज़बान में
अ है। आपके ज़बान में क्या है और इंग्लिश में ए है। ये जो दो ज़ेर है ना, उसमें से जो एक ज़ेर है वो आपके ज़बान के ई है, और इंग्लिश में आप आई बोलिए या ई बोलिए, अभी आई ही ले लीजिए, वो कभी आई होता है कभी ई होता है। और ये जो दो पेश है ना, उन दो पेश में से एक पेश आपके ज़बान में ऊ है, इंग्लिश में यू है। ये दूसरा ज़बर, दूसरा देर, दूसरा पेश कौन है? वो तनवीन है। दूसरा ज़बर, दूसरा ज़ेर, दूसरा पेश वो कौन है? देखिए, दूध था, हमने चाय पत्ती दी तो वो चाय बन गई। आई बात समझ में? दूध था, हमने उसमें इमली डाले तो दही बन गई। बिल्कुल उसी तरह ये ज़बर है, उस पर और एक ज़बर आया तो फिर वो तनवीन हो गया। एक ज़ेर है, उसके नीचे एक ज़ेर और आया तो वो तनवीन हो गया। एक पेश है, उसके ऊपर और एक पेश है तो तनवीन होगा। और ये तनवीन है क्या, मैं आपको समझाया था। हम आपको समझाया कि तनवीन को अगर आपके ज़बान में लिखेंगे तो आखिर में जो हर्फ आता है वो कौन आता है? इन आता है। इंग्लिश में जो आखिर में जो हरफ आता है वो यन आता है। तनवीन का मतलब है इन या एन, यानी एक ज़बर का मतलब तो आ है, दूसरे का मतलब इन है या यन है। इसी तरह एक ज़ेर का मतलब तो ई है और दूसरे का मतलब इन है, और इंग्लिश में यन है। इसी तरह एक पेश का मतलब ऊ है और दूसरे का मतलब इन है या यन है। आपको बस समझ में आ गई? एक ज़बर है तो पढ़ेंगे अ, दो ज़बर तो पढ़ेंगे अन, एक ज़ेर तो पढ़ेंगे ई, दो ज़ेर तो पढ़ेंगे इन, एक पेश तो पढ़ेंगे उ, दो पेश तो पढ़ेंगे उन। ये जो दूसरा ज़बर, दूसरा ज़ेर, दूसरा पेश है ना, वो नून साकिन ही है। आप बोलते कि ये ज़बर ज़ेर पेश अगर नून साकिन है तो हम ज़बर ज़ेर पेश क्यों बोलते, तनवीन क्यों बोलते? असल में नून साकिन को बदला गया है ज़बर की शक्ल में। हम इसको बोलते दो ज़बर लेकिन पढ़ते हैं नून साकिन। जिस तरीके से इंग्लिश में हम नाम लिखते हैं तो नाम के शुरू में हम एमडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं और बोलते क्या है? मोहम्मद बोलते हैं। लिखते हैं एमडी, बोलते हैं मोहम्मद। बिल्कुल उसी तरह हम इसको हम लिखते हैं ज़बर लेकिन पढ़ेंगे इन या यन। इसको हम लिखते हैं ज़ेर लेकिन पढ़ेंगे इन या एन। इसको लिखते हैं हम पेश, पढ़ेंगे इन या न। यानी असल में जो दूसरा ज़बर एक ज़ेर एक पेश तो वो आ ई ऊ ही है। दूसरा जो ज़बर है वो इन है। मतलब ये है कि हमने नून साकिन को ज़बर से बदला। जैसे कि एक मिसाल और दूं, 10 ग्राम सोने की अंगूठी, हम इसको तोड़कर कान की बाली बना सकते? नहीं बना सकते। ये जो बाली इस वक्त तो पहले क्या थी? अंगूठी थी। अब क्या बनी? अब बाली बनी। बिल्कुल इसी तरह वो नून साकिन है। नून साकिन को जब हम बदलना चाहेंगे तो तनवीन की शक्ल में। जब दो ज़बर आएगा तो समझना एक ज़बर है, एक नून है, एक ज़ेर है, एक नून है, एक पेश है। ये हम इसको एक अलग मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं कि ये गिलास है, देख रहे हैं ये गिलास, और इधर देखिए ये भी एक गिलास है। लेकिन आपको मुझे समझाना है कि इन दोनों गिलास में फर्क क्या है। कौन खाली है? दोनों खाली है। वो वाला खाली है,
और इसमें क्या है? कौन डाला पानी? अभी तो पानी मेरे हाथ में है, हम डाला इसमें, हमने गलत बोल दी। वो कांच का है, स्टील का है, समझ गए? वो गिलास किसका है? कांच का। और ये अब हम तो पानी डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें पानी डाला, कितना हो गए? इसमें भी हम डाले, कितने? दिख रहे आप? नहीं दिख रहा है। यही फर्क है नून साकिन और तनवीन में। नून साकिन में नून साकिन को दिखता है जैसे कांच के गिलास में पानी, और तनवीन में नून साकिन है मगर दिखता नहीं है, हालत बदली। बाज लोग कहते हैं वो छुपा हुआ, हम कहते हैं कि हालत बदली हुई। आ गई बात समझ में आपको? इसको हम जरा पढ़ के देखेंगे तो एक ही मतलब होता है। ये देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हमज़ा नून ज़बर अन, फिर बोलिए हमज़ा दो ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा दो ज़बर अन, अन दोनों की आवाज, दोनों की आवाज। आगे देखिए, हमज़ा नून पेश उन, हमज़ा दो पेश उन, उन आगे देखिए, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा दो ज़ेर इन, इन दोनों की आवाज। नून सक। अच्छा, ये जो सबक अब तक मैं आपको समझा रहा था, इस सबक का खुलासा क्या निकला कि नून साकिन और तनवीन एक ही चीज है। जैसे एक बाप का 4 बेटा है। एक बाप का कितना बेटा? एक का नाम क्या है? नून साकिन। और एक का नाम क्या है? बोलो लोग। दो जबर। और एक का नाम क्या है? दो जेर। और एक का नाम क्या है? दो पेश। एक बाप का 4 बेटा है और रात को बाप मर गया। रात को बाप खुशी की बात है ना? अरे बोलो ना है। हाँ, खुशी की बात है। 4 करोड़ रुपया छोड़ के गया। खुशी नहीं? अब पैसे का क्या होगा? 4 भाई है, 4 करोड़ रुपया है, तो बड़े भाई को कितना मिलेगा? दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, बाकी किसको मिलेगा? खत्म हो गया। समझ लीजिए मेरी बात को। ये नून साकिन और तनवीन मिसाल के तौर पर 4 भाई है। एक का नाम नून साकिन है, एक का नाम 2 जबर है, एक का नाम 2 जेर है, एक का नाम 2 पेश है। ये सब एक बाप का 4। और पैसे का जब हिस्से होगा अलग अलग या बराबर? क्योंकि एक बाप का बेटा है, ये सब एक ही है। जब पैसे में हिस्से बराबर, इसी तरह नून साकिन और तनवीन के कायदे में भी बराबर है। नून साकिन और तनवीन के कायदे में भी बराबर है। अब से बात चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि मीम के गलत, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, नून के साथ जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, और नून के ऊपर जज़म हो तो देखेंगे। नून के ऊपर जज़म है तो, और 2 जबर है तो, बस आपने अभी बताया कि दोनों एक है, फिर अभी बात को बदल दिए, बस हो गए मेरा काम। अभी बात हुई इतने देर में कि नून साकिन तनवीन एक है, और जब पूछा नून साकिन तो कह रहे देखेंगे, 2 जबर, करे गुन्ना करेंगे। ये अलग कहाँ से हो गए? अरे भाई सबका कायदा एक है ना। नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, जज़म हो तो, फिर 2 जबर है तो देखेंगे। अरे कायदा एक है ना। 2 जेर है तो देखेंगे, 2 पेश है तो, बात खत्म हो गई। आइए बस समझ में। नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, जबर जेर पेश तो गुन्ना, नून के ऊपर जज़म हो तो, 2 जबर हो तो
دو زیر ہے تو دو پیش ہے تو کیا دیکھیں گے؟ اس کے بعد حروف کون ہے دیکھ لیجئے نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ عین ہا حمزہ عین ہا حمزہ عین ہا حمزہ عین ہا غین خا حمزہ عین ہا غین خا لام را حمزہ عین ہا غین خا لام را حمزہ عین ہا غین خا لام را حمزہ حمزہ عین ہا غین خا حمزہ عین ہا غین خا لام را حمزہ عین ہا غین خا لام را حمزہ عین ہا غین خا لام را کتنے حروف گنا نہیں ابھی تک پیسہ ہوتا تو فٹافٹ گن لیتے ہیں کم ہوا تو بتاتے کم ہو گیا ابھی تک نہیں گنے نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 8 حروف آئے تو گننا نہیں کریں گے تو گننا اور 20 حرف آئے تو ارے 28 میں سے 8 گیا تو 20 حرف بچا دھیان دیجئے اگر 20 حرف آئے تو گننا کریں گے تو گننا اب ہم اس 20 کو 3 میں تقسیم کریں گے اس 20 کو 3 میں تقسیم کریں گے ایک ایک کر کے سمجھ لیجئے نمبر 1 نون ساکن یا تنوین کے بعد سمجھے میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سبق تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے ہاں پہلے ملاقات میں مشکل ہی لگتا ہے اور 10 دن ملاقات ہو گئے تو لگتی یہ تو اپنا ہی ہے لگتا نہیں لگتا ارے کسی آدمی سے جب پہلی ملاقات کون ہے بولتے نہیں بولتے کون ہے پھر دوسری ملاقات میں کیا بولتے ہاں میں آپ کو ایک دن دیکھا تھا بولے گا نہیں بولے گا اور تیسری ملاقات اچھا وہ آپ ہیں قریب بیٹھی تو انشاءاللہ یہ تو آپ کی پہلی ملاقات ہے اس کو آپ بار بار دیکھیں گے نا بار بار سنیں گے نا بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ ایزی ہوگا جب آپ قرآن میں جائیں گے تو میں آپ کو ایزی کروں گا انشاءاللہ اس لیے ٹینشن نہیں لینا صرف میری بات کو سمجھ لیجئے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد 8 حروف ہے تو گننا 20 ہے تو گننا اس 20 کو ہم 3 میں تقسیم کریں گے کتنے میں تقسیم کریں گے پہلے دیکھیے نون ساکن کے بعد نون ساکن کے بعد کون ہے با ہے ذرا دھیان سے بولنا نون ساکن کے بعد یہ با 8 میں ہے یا 20 میں ہے تو گننا کریں گے لیکن کس طرح گننا کریں گے تو اس کا جواب ہے کہ نون ساکن کو میم سے بدل کر گننا کریں گے بدل کر مطلب جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون نہیں پڑھیں گے میم پڑھیں گے میم نون زیر من نہیں پڑھیں گے میم میم زیر میم کیوں بدلیں گے آواز کیوں بدلی با آیا آواز کیوں بدلی اجے ہم نے رات کو دودھ میں املی ڈال کے سو گیا یہ دودھ کیوں بدلا ہم نے املی ڈالی آئی بات سمجھ میں بالکل اسی طرح جیسے کہ دودھ میں املی ڈالنے سے دودھ دہی سے بدل جاتا ہے نون ساکن کے بعد با آنے سے نون میم سے اس کا نام اقلاب ہے اقلاب کے معنی بدلنا آپ کی کتاب میں ہے انشاءاللہ تفصیلی سمجھوں گا نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر
गुनाह करेंगे। नाम क्या रखेंगे? इखलाब। नाम क्या रखेंगे? तो 20 में से बा एक हरफ गया, कितना बचा? 19 बचा। अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम, नून वाव, या मीम 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 नून वाव। अब मुझे बताइए कि या मीम नून वाव ये 8 में है या मतलब गुन्ना? लेकिन किस तरह गुन्ना करेंगे? तशदीद देकर गुन्ना करेंगे। कैसे गुन्ना करेंगे? तशदीद देकर गुन्ना करेंगे। और इसका नाम क्या रखेंगे? इदगाम। इदगाम क्या होता है? ये देखिए, इदगाम क्या होता है? ये रोड है। कौन सा रोड है ये सेलम बेंगलोर या चेन्नई बेंगलोर, कुछ भी हाईवे ले लीजिए। इस हाईवे के बीच में एक आदमी खड़ा है, वहाँ एक दूसरा आदमी खड़ा है, और मेरी गाड़ी जा रही 120 के स्पीड में। पहले कौन मरेगा और बाद में कौन मरेगा? जरा देख रहे हैं रोड में क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। नहीं देखे? नहीं देखे? फिर दिखाओ। ये देख लीजिए, ये 2 नंबर आदमी यहाँ खड़ा, 1 नंबर। मेरी गाड़ी स्पीड से जाते 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 यूं जंप करके यूं गिरी और यूं मारी और यूं गई। कौन बच गए? क्यों बचा? गाड़ी ने क्या किया? इस जंप ही को इदगाम कहते हैं कि नून साकिन के बाद ये 4 हुरूफ जब आएगा ना, तो ये जबर जंप करेगा और किसको पकड़ेगा? या को। ये देखिए, मीम या जबर मई, मीम मीम जबर मम, मीम नून जबर मन, मीम वाव जबर मौ। हमने नून को क्या किया? छोड़ दिया। जबकि नून साकिन के बाद ये 4 हुरूफ आता है तो नून साकिन को पढ़ा। आप पूछेंगे ना, आप उसको छोड़ कैसे दिए? अब वो बाहर फजर नमाज से पहले लाइटें जल रही थी ना, अब बंद क्यों कर दी? सूरज निकला ना। बिल्कुल उसी तरह यहां जज़म है, यहां तशदीद है। जज़म ये कमजोर है, तशदीद ये ताकतवर है। जब तशदीद आया तो जज़म की छुट्टी, सूरज निकला तो करंट की छुट्टी। इसका उसूल समझ लीजिए, जज़म तशदीद पास पास। जज़म तशदीद आपके ज़बान में क्या बोलते हैं? जज़म तशदीद फ़क़तिल्ला। बोलो ना, मुझे तो नहीं आता लेकिन फ़क़तिल्ला फ़क़तिल्ला। जज़म तशदीद पास पास। तो जज़म को नहीं पढ़ेंगे, तशदीद को पढ़ेंगे। इसी का नाम जंप है, इसी का नाम इदगाम है। आई बस समझ में? मीम या ज़बर मई, मीम मीम ज़बर मम, मीम नून ज़बर मन, मीम वाव ज़बर मौ। कितने हुरूफ निकल गए? पहले कितना निकला था? 1। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे। नाम रखे थे इखलाब। ये 4 हुरूफ आए तो नून को छोड़कर जंप करके इदगाम करेंगे। इदगाम के साथ गुन्ना करेंगे या गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। इसका नाम इदगाम। इसका नाम क्या है? 1 गया, 4 गया, बचा कितना? उस 15 को आपको याद करना है। हमारे यहाँ याद कराने का तो तरीका अलग है। जैसे बहुत से फूल होते हैं, उस फूल को हम गले का तो बीच में धागा डालते नहीं डालते, इसी तरह 15 हुरूफ के बीच में हम एक धागा डालेंगे। क्या है वो धागा? वो इंग्लिश का ओ होता है। ये देखिए, ये देखिए, ता ओ, सा ओ,
جیم او دال او. اسی طرح ہم پڑھیں گے تاؤ ثاؤ جیمو دالو. یہ دالو کیا چیز ہے؟ دال او. اب ہم یاد کراتے تاؤ ثاؤ جیمو دالو. گھر والا پوچھتے کہ یہ دالو کیا چیز ہے، وہ میرے پاس آ کے پوچھے معلوم یہ دالو کیا چیز ہے. اسی لیے ہم بتا کہ دالو نہیں دال او. یہ دال ہی ہے، ساتھ میں ہم نے بیچ میں دھاگا ڈالا یاد کرانے کے لیے. کریں گے یاد؟ تاؤ ثاؤ جیمو دالو. پھر بولیے، پھر بولیے، پھر بولیے تاؤ ثاؤ جیمو دالو. پھر بولیے، پھر بولیے غلو زا غلو زا سین و شین 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 تاؤ ثاؤ جیمو دالو غلو زا سین و شین تاؤ ثاؤ جیم غلو زا سین و شین تاؤ ثاؤ جیمو دالو غلو زا سین و شین تاؤ ثاؤ جیمو غلو زا صدو غدو صدو غدو تازو 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 صدو غدو فوق فكاف فوق فكاف فوق فكاف فوق فكاف صدو ضدو تازو فوق فكاف صدو ضدو تازو فوق فكاف صدو ضدو تازو فوق فكاف صدو ضدو تاؤ ثاؤ جیمو دالو. پھر بولے آنکھ بند کر کے بولیے، دیکھ کر بولیے، آنکھ بند کر کے بولیے غلو زا سین و شین. پھر بولے آنکھ بند کر کے بولیے، دیکھ کر بولیے تاؤ ثاؤ جیمو دالو غلو زا سین و شین تاؤ. پھر بولیے آنکھ بند کر کے بولیے دیکھ کر بولیے صدو ضدو تازو صدو ضدو تازو. پھر بولیے پھر بولیے آنکھ بند کر کے بولیے دیکھ کر بولیے فوق فكاف فوق فكاف
قف كاف صاد ضاد تا ظا فا قف كاف صاد ضاد تا ظا پھر بولے آنکھ بند کر کے بولے تاؤ ثاؤ جیم دال ذال زا سین و شین صاد ضاد تا ظا فا قف كاف تاؤ ثاؤ جیم دال ذال زا سین و شین صاد ضاد تا ظا فا قف كاف تاؤ ثاؤ جیم دال ذال زا سین و شین صاد تاؤ ظا فا قف كاف پھر بولیے تاؤ ثاؤ جیم ذال زا سین و شین صاد فا قف كاف تاؤ ثاؤ جیم ذال زا سین و شین صاد ضاد تاؤ ظا فا قف كاف یہاں دیکھیے نون ساکن ہے میں آپ کو بتا تھا نون ساکن یا تنوین ایک ہی ہے بولتے نہیں سب کا قاعدہ ایک ہی ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد کون ہے تا کہاں ہے کہاں پوچھا میں 15 میں ہے 20 میں ہے اب تو صحیح ہے 20 میں ہے 20 میں سے 15 ہے تو ناک میں چھپا کر گننا کریں گے لیکن ناک میں چھپا کر اس کا نام کیا ہے اخفا 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 حمزہ نون زبر آن آن تا زبر تا آتا آتا آپ کو سمجھنا ہے کہ گنہ اور اخفا میں فرق کیا ہے گنہ اور اخفا میں ادھر دیکھیں جیب کو اوپر اگر ٹچ کریں گے اور دبائیں گے ان اس کا نام گنہ ہے آواز 100% ناک سے نکلے گی ان میں گنہ کروں اس بیچ میں کسی نے اگر میرا ناک پکڑ لیا تو آواز بند ان اس کا نام گنہ ہے اخفا کے معنی چھپانا آدھی آواز نکلے گی اور آدھی آواز اندر رہے گی اور جیب کو اوپر ہم قریب ٹچ نہیں قریب اور اس دوران کسی نے اگر میرا ناک پکڑ لیا نا تو آواز رکے گی نہیں دیکھیں آواز رک رہی چونکہ آدھی آواز تو رکی آدھی آواز اندر یہی گنہ اور اخفا میں فرق ہے آتا 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 کہیں آپ بھول جائے گے اس لیے ہم اس کا مثال دیتے ہیں اوپر دیکھیں پنکھا وہ بھی اخفا ہے اور آپ کے ادھر مچھی بازار ہے کہاں ہے بولے کہ کرشن گیری میں کل دیکھا ادھر ہے ادھر ایک مچھی بھی ایک مچھی ہے اس کو کیا بولتے معلوم جھینگا کیا بولتے معلوم ہے مچھی وہ مچھی معلوم ہے اس کو مکروہ بولتے ہیں اور کھانے میں مزہ بھی ہے اسی لیے تو مزہ ہے جبکہ مکروہ ہے تو مزہ ہونا چاہیے ہے نا
उस झींगा को हमारे कलकत्ता वाले चिंगड़ी बोलते, क्या बोलते हैं? चिंगड़ी। ये सब इख्फा है। आचा, पंखा, झींगा, चिंगड़ी, ये सब इख्फा है। इंशाल्लाह ये सारी बातें तफसीली मैं आपको किताब में जाके समझाऊंगा इंशाल्लाह। एक बार ज़रा सारी बात को एक नज़र देख लीजिए। गुन्ना के लिए नून मीम होना लाजिमी है, ठीक है। आगे देखिए, मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना करेंगे, जबर जेर पेश है तो गुन्ना नहीं करेंगे, जज़म हो तो देखेंगे, बा है तो गुन्ना करेंगे, मीम है तो गुन्ना करेंगे। 28 में से बा मीम निकला तो बचा 20 पर 6 26, तो गुन्ना नहीं करेंगे। उसी तरीके से नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, ज़बर ज़ेर पेश तो गुन्ना, और नून के ऊपर जज़म और तनवीन हो तो देखेंगे। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा है तो गुन्ना, इसका नाम इजहार है। क्या नाम? इजहार है। बाकी 20 हरूफ है तो गुन्ना। उस 20 को हमने 3 में तकसीम किया। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो हम नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे। नाम, 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 बोलना रे, नाम, इखलाब, नाम, इखलाब। नून साकिन या तनवीन के बाद 4 हरूफ या मीम नून वाव आए तो नून साकिन को छोड़कर या मीम नून वाव से मिलाकर गुन्ना करेंगे। नाम, इदगाम। नाम क्या है? इदगाम। और ये 15 हरूफ आए तो नाक में छुपा कर गुन्ना करेंगे। नाम, नाम क्या है? इख्फा। बस इस कायदे को हम खूब देखेंगे, खूब समझेंगे। और ये गुन्ना वो कायदा है, मैं आपको एक दिन समझाया था। कलकला क्या है? कलकला के साथ आप पढ़ेंगे तो जब आप कुरान पढ़ेंगे ना तो कुरान में हुस्न आएगा, खूबसूरती आएगी। इसी तरह गुन्ना भी, गुन्ना के बगैर नमाज हो जाती है, कलकला के बगैर भी नमाज, लेकिन हुस्न नहीं। मैं आपको समझा था 10 ग्राम की एक बाली, कान की बाली, एक दूसरी बाली वो भी 10 ग्राम, एक तीसरी बाली वो भी 10 ग्राम, तो सबकी कीमत अलग अलग है या एक है? लेकिन डिजाइन में फर्क है। एक डिजाइन लो, एक डिजाइन हाई, एक डिजाइन मीडियम। हमारी माँ किसको लेगी? वो कीमत कम है क्या? डिजाइन के वजह से चूज करेगी। जिस तरह हम डिजाइन को, खूबसूरती को पसंद करते हैं, हमारे रब का भी कहना है कि तुम कुरान पढ़ो बेहतरीन अंदाज से, अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ो। क्यों? जब कोई इंसान कुरान मजीद की तिलावत करता है, अल्लाह फरमाता है मैं अपने खुद अपने कान से सुनता हूँ। हाँ, और इंसान जब कुरान मजीद की तिलावत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बातें फरमाते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको कुरान शुरू कराऊंगा तो मैं बताऊंगा। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अल्लाह से बातें कर रहा है। क्या कर रहा है? और एक आदमी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो नहीं कर रहे, अल्लाह उससे बातें करते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान कि जब मेरे दिल में ये बात आती थी कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो नमाज पढ़ता था, और जब दिल में ये बात आया कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो कुरान मजीद की, ये कुरान मजीद, इसमें किसका कलाम है? अजय किसकी बात है? जब हम आजकल तो चिट्ठी का जमाना तो गया, क्या आया? मोबाइल में, व्हाट्सएप में मैसेज आता है। हम मैसेज को पढ़ते नहीं पढ़ते? अरे पढ़ते नहीं पढ़ते। किसके ज़बान से? भेजने वाले या अपनी ज़बान से? भेजने वाले की ज़बान से पढ़ते। अच्छा, अब मैसेज पढ़ते उनकी ज़बान से है? कहाँ से है आप लोग पता नहीं। अब जो मैसेज पढ़ते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है खैरियत है, अजी बेंगलोर कब आ रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं उसकी ज़बान से है। और बात किसकी? बात उसकी है, ज़बान आपकी है। और ये जो बात आप अपनी ज़बान से बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? उसको, अपने को? अरे बोलो ना भाई, ये जो बात आप बोल रहे हैं खैरियत हैं, किसको बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं आप। अब जो चिट्ठी पढ़ रहे हैं खैरियत हैं पढ़ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं? हाँ जी, अपने को बोल रहे हैं।
آج وہ پیسہ لینا نہیں لینا کس سے بول رہے ہیں آپ؟ ارے اس میں میسج میں لکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا، لینا نہیں لینا کس کو بول رہے ہیں آپ؟ اب بات سمجھ میں آ گئی نا بات پیسے کی؟ وہ جو میسج میں لکھا نا اپنے دوستوں نے بھیجا کہ ہم نے ارادہ کیا آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا، کب لیتے ہیں؟ کس کو بول رہے ہیں؟ اپنے کو بول رہے ہیں۔ جب انسان قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے، زبان اس کی، بات اللہ کی، اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والوں سے اس کی زبان سے اسی سے بات فرماتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ مزہ آئے گا، اس لیے نیت کرے کہ ہم قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ، محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے۔